Welcome to the lecture number 5 of the subject Computer Networks. In this lecture, we will discuss the client server and peer-to-peer models. Basically, in last lecture, we were discussing the classification of the computer network. And as we discussed, the computer network can be classified on the basis of scale, geographical span, and a relationship. Yesterday, we discussed the classification of the computer based upon the scale and geographical span. And today, we will discuss the classification of the computer networks on the basis of a relationship. And on the basis of a relationship, computer network can be classified into three categories: client server, peer-to-peer, and hybrid. तो आपको याद होगा इससे पहले भी हम नेटवर्क मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने क्लाइंट सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड और कोलैबोरेटिव डिस्कस किया था. तो वहां पे भी ये थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी अबाउट द क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर एंड हाइब्रिड. So today we will discuss these terms and their differences and advantages, disadvantages in detail. So let's start the discussion with the peer-to-peer networks first of all. Now, in this type of computer network, in this type, we will be having two types of, we will be having only one type of machine. We will not be having any concept of client and server. Here we will be having the nodes. Let me mark them as 1, 2, 3, and 4. Now, in peer-to-peer networks, each computer will be independent, and it will not be dependent upon a particular machine for all kind of services. Now here in this case, we have 4 computers in the network. Computers are connected with each other. They have their own resources, and we don't have the concept of any centralized control. तो यहाँ पे अब इस नेटवर्क में कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है. हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज हैं और कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है. फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम दैट कंप्यूटर 1, it has its own hardware and own resources. Now let's assume that it has the resources R1 and R2, and computer 2 has the resources R3 and R4. Computer 3 has R5, R6, and computer number 4 has the resource R7. Now these resources can be a printer, can be a scanner, it can be hard disk, it can be any application. तो कहने का ये मतलब है कि अब ये जो नेटवर्क है इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है. हर कंप्यूटर के पास अपना हार्डवेयर है और अपने रिसोर्सेज हैं. और क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का मेन जो मोटिव होता है, दैट इज टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. यही मोटिव होता है ना कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का, ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें और हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें. तो अब हर कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज हैं और अपना हार्डवेयर है. दैट्स वेरी फाइन, बट द पॉइंट इज व्हाई वी हैव कनेक्टेड देम. अगर हर कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज हैं, अपना हार्डवेयर है, तो हमने ये नेटवर्क इस्टेब्लिश क्यों किया? तो आप देख सकते हो कि हमने रिसोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करा है. तो इट मींस जो रिसोर्सेज नंबर 1 पे हैं वो नंबर 2 पे नहीं है, और जो रिसोर्सेज नंबर 3 पे हैं दे आर नाइदर ऑन द मशीन नंबर 1 नॉर ऑन 2. और इसी तरह से कंप्यूटर नंबर मशीन नंबर 4 के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स है, दैट इज नॉट ऑन अवेलेबल ऑन मशीन नंबर 1, 2 एंड 3. तो अब ये क्लियर हो गई चीज कि हर कंप्यूटर के पास जो रिसोर्सेज हैं दे आर डिफरेंट. क्योंकि अगर हम पहले ये मान के चलते कि जी कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, हर कंप्यूटर के पास अपने रिसोर्सेज हैं, तो फिर पॉइंट ये था कि हमने ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश ही क्यों किया. But the point is, every computer has a unique resources. There will be some common resources like main memory, their operating system, है ना?
they will be having their own RAM, or they can have their own hard disk, ये भी हो सकता है. But कुछ ऐसे resources हैं जो यूनिक हैं उनके पास. जैसे मान लीजिए नंबर 1 पे प्रिंटर है, नंबर 2 पे स्कैनर है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट ना. और इसी तरह से नंबर 3 और 4 पे कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. तो ये मान लेते हैं हम कि हर कंप्यूटर के पास कुछ यूनिक रिसोर्सेज हैं. अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है. अगर मशीन नंबर 1 को रिसोर्स नंबर 1 चाहिए या 2 चाहिए, वो उसके पास लोकली अवेलेबल है, तो उसको किसी मशीन के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ लेट्स अज्यूम दैट एट सम अदर टाइम, लेट्स से एट टाइम T2, machine number 1 required the resource R3. Now, because the resource R3 is not available on the machine number 1, it will communicate with the machine number 2 for the required resource. Now, at this time, the machine number 1 will be act as a client and machine number 2 will act as a server. Now, this client and server word I am using only for no logical representation कि which machine is requesting the resource and which machine is providing the resource. नहीं तो peer to peer में ऐसी कोई concept नहीं है कि, क्योंकि client और server में क्या होता है कि एक fixed machine होती है कि जी ये server है, ये आपका सारा centralized manage करेगा, इसी पे सारी services हैं. And if any computer wants any type of services, then that computer needs to communicate with the server. वहां पे फिक्स्ड रहते हैं रोल, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है. जैसे हम बात कर रहे हैं एट टाइम T2, machine number 1 required the resource R3 because the R3 resource is not available locally on machine number 1. It will request the machine number 2 for R3 resource. Now at this time T2, the machine number 1 will act as a client because it is requesting for the resources, and machine number 2 will act as a server because it's providing the required resources. So let's mark them as T2. This is server. Now the machine number 2 will provide the requested resources to machine number 1. Now let's assume that at time T3, so let me mark it here, time T3, machine number 2 required a resource, that is R1. Because the R1 is not available on the machine number 2, it will request for the resource to the machine number 1. Now at time T3, the machine number 2 will act as a client and the machine number 1 will act as a server. This type of network is called peer-to-peer. Clear हुआ जी? So machines are connected with each other. They have some common resources and some unique resources. A machine can act as a client at given time, and it can also act as a server on some other time. This type of setup, this type of the network setup is called peer-to-peer network. अब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऐसी जो peer to peer नेटवर्क्स को यूज करती हैं. आपने एक बहुत ही फेमस सर्विस है जिसको मैं आपको बताता हूँ, म्यूटोरेंट. शायद आपने नाम सुना हो इसका. सुना है किसी ने नाम? Yes, sir. हाँ. So एक्चुअली इसको यू कहते हैं ना, लेकिन वो यू नहीं है, इट्स म्यूटोरेंट, लेकिन कॉमनली इट इज नोन एज यूटोरेंट. तो म्यूटोरेंट में ये एक पीयर टू पीयर सर्विस है. सपोज कीजिए किसी के पास कोई डेटा है शेयर करने के लिए, मान लीजिए दैट इज R1. ठीक हो गया? तो R1 कंप्यूटर 1 के पास है, तो सबसे पहले 2 उसको रिक्वेस्ट करेगा, 3 को भी चाहिए, वो भी उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, 4 भी उसके लिए रिक्वेस्ट करेगा. फिर सपोज कीजिए कि इसने 2 ने पहले रिक्वेस्ट कर दिया था, अब इसके पास भी आ गया R1. तो अब ये जो 3 और 4 हैं, दे कैन ऑल्सो request the machine number 2 for the given resource. So mute-torrent is the example of the peer-to-peer network.
जिसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए ये थोड़ा सा अनसिक्योर हो जाता है। हम ये आगे चल के डिस्कस करेंगे वैसे कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि इन पीयर टू पीयर नो मास्टर और कंट्रोलर या सर्वर नहीं होता। ईच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग इट्स ओन सिक्योरिटी। Each operating system has its own operating system, own security configured. So every machine needs to manage itself. Each device act as a client, and peer-to-peer relationship is suitable for small network having less than 10 computers on a single LAN. तो ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस कर ही चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाउ एडवांटेजेस आर, oh no, it's actually very easy to set up. अब easy to set up क्यों है? क्योंकि आपको कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल कॉन्फ़िगर नहीं करना, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों नहीं इन्वॉल्व? क्योंकि इफ यू विल बी यूजिंग क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो सर्वर मॉडल पे आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो आपके लिए सेंट्रली हर सिक्योरिटी, हर सर्विस को मैनेज कर सके। ठीक है जी। सो each device is master of its own. They are not dependent on other computers for their operations. तो क्योंकि आपको किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन सम other computer for your operations, and it does not require specialized operating system, that is network operating system. Please consider it as a small. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करते हो तो सर्वर पे एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीयर टू पीयर में क्योंकि आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड सर्वर है ही नहीं, so you don't need to install the special operating system also. Now talking about the disadvantages of peer to peer network, सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो तो है जी सिक्योरिटी। क्योंकि कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है तो सिक्योरिटी तो बहुत ही वीक है इसकी। दूसरा, कोई सेंट्रलाइज डेटा बैकअप नहीं है आपके पास, क्योंकि डेटा जो है वो डिफरेंट मशीन्स पे लोकेटेड है, तो हर मशीन अपने आप को खुद मैनेज कर रही है, तो आपके पास कुछ परमानेंट या कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है ऑफ बैकिंग अप द डेटा। एंड थर्ड इज, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है दैट विल हेल्प यू इन आर्काइविंग योर फाइल्स और फॉर द स्टोरेज। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं, सिंपल है, कॉस्ट थोड़ी सी कम है, कोई मशीन किसी और मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, और ऑब्वियसली आपको अगर आप स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं चाहिए आपको। अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड मशीन रखोगे तो आपको एक वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर भी तो चाहिए ना, तो वो भी कॉस्ट इसमें कम हो जाती है। और डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं? कोई सेंट्रलाइज्ड बैकअप नहीं है, आर्काइविंग सिस्टम नहीं है, और सिक्योरिटी बहुत ही वीक है। Now let's discuss the second type of the type of the computer network based upon the relationship, that is client server networks. अब नाम से ही क्लियर है और आप सीधा डायग्राम में देख सकते हो। Now अब कोई भी मशीन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ। अब हमारे पास कैसा कॉन्सेप्ट है? वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर। तो सबसे पहले अब ये सर्वर क्या होता है? सर्वर इज द मशीन दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज। सर्वर वो मशीन होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज क्या होती हैं? वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी स्टोरेज, फाइल, वेब, DHCP, DNS, एनी एप्लीकेशन सर्विसेज। ठीक है जी। तो वो मशीन जो आप एक नेटवर्क में सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं सर्वर। And in client server architecture, the machine that request for the services is called client. ठीक है जी। So server provides the services.
तो एक ऐसी मशीन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेटवर्क में उसको बोलते हैं सर्वर। और सर्विसेज कौन सी होती हैं? फाइल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है जी, स्टोरेज सर्विस हो सकती है, डीबीएमएस, डेटाबेस एप्लीकेशन जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, डीएनएस हो सकती है, वेब हो सकती है। तो ये सारी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो मशीन जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड सर्वर, एंड द मशीन दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज इज कॉल्ड क्लाइंट। एंड क्लाइंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, हर क्लाइंट एक्चुअली कनेक्टेड होता है विद द सर्वर, और सर्वर सारी चीजों को सेंट्रली मैनेज करता है। अब इस केस में क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए मशीन नंबर 1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद द मशीन नंबर 2, तो मशीन नंबर सपोज कीजिए 1, client 1 wants to communicate with the client 2, because there exists no direct link between the client 1 and 2, they cannot communicate directly। तो अगर client 1 client 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्या करेगा? सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, ठीक है जी। फिर सर्वर उसको ग्रांट करेगा एक्सेस, और उसी के बेसिस पे फिर उसकी कम्युनिकेशन होगी विद द क्लाइंट 2, और इसी तरह से फिर वापस रिप्लाई चलेगा। सो देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स। If one client wants to communicate with the other client, it can do that through the server only। तो अगर ये सारी चीजें सर्वर के थ्रू हो रही हैं तो ऑब्वियसली सर्वर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द और मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर नेटवर्क। तो अब आपको सारी चीजों को यहीं पे कंट्रोल करना है, एक मशीन पे। यहीं पे आपका डेटा स्टोर होगा, यहीं पे आप बैकअप लोगे, यहीं पे आपका डीबीएमएस होगा, यहीं पे आपका वेब सर्वर होगा। हाँ, क्लाइंट सर्वर की बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर, है ना, सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर। और ये भी हो सकती है मल्टीपल क्लाइंट्स सिंगल सर्वर, या मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर्स। क्योंकि इंटरनेट में जो मॉडल इस टाइम पे है, जो वेरिएशन क्लाइंट और सर्वर की है, वो है मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर्स। आप एक ही मशीन पे सारी सर्विसेज नहीं रख सकते, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ी सर्विस है, उसके लिए अलग सर्वर्स हैं, गूगल के लिए अलग सर्वर्स हैं। तो ऐसी जो आप वेरिएशन देखते हो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्वर्स। तो अब सारी सिक्योरिटी सिंगल एक ही मशीन पे सारे रिसोर्स होंगे, वहीं पे सारी सिक्योरिटी आपकी मेंटेन होगी। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा ऑलरेडी, इफ क्लाइंट 1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट 2, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, इट कैन कम्युनिकेट थ्रू द सर्वर ओनली। So server is responsible for managing all the files, resources and applications. This type of setup is called client server network, जिसमें centrally आप सारी चीजों को control करते हो। Now let's discuss about the advantages of the client server system. So centralized control possible है, centralized backup possible है। सारा सिस्टम क्योंकि आप एक जगह से कंट्रोल कर रहे हो, तो आप सर्विसेज को बेटर मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो, और आपको एक ही मशीन पे एक्स्ट्रा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, बजाय ये कि आप हर मशीन पे लगाओ। ठीक हो गया जी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो अगर आप एक ही मशीन यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपके क्लाइंट ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं नेटवर्क में, तो आपको बहुत हाई लेवल का हार्डवेयर चाहिए ताकि वो इंटरटेन कर सके मल्टीपल क्लाइंट्स को एट द सेम टाइम। तो ऐसे अगर आपको हाई एंड का हार्डवेयर चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए जो ये सारी चीजों को मैनेज कर सके। क्योंकि अब एक ही मशीन पे आपकी सारी चीजें हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में तो क्या था कि हर मशीन इट
every machine was responsible for its own resources. हर मशीन अपने रिसोर्सेज को खुद ही मैनेज कर रही थी. कोई एक्सटर्नल किसी चीज के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं था. लेकिन अब एक मशीन पे ही हमें सारी चीजों को कंट्रोल करना है और मैनेज करना है. तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, and we required a dedicated person, a specialized person who can manage all these services on the server, on a specialized machine. So these are the disadvantages of the client server systems. The third type of systems, third type of the computer network based upon the relationship is called hybrid. As the name implies, the combination of both peer-to-peer and client server. अब इसमें क्या होगा, हाइब्रिड में आपकी बहुत सारी सर्विसेज जो होंगी वो एक सिंगल मशीन पे होंगी, बट कुछ और रिसोर्सेज होंगे जो कुछ और मशीन्स पे होंगे. उन रिसोर्सेज के लिए पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होगी, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट्स होंगे दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज. For most of the crucial services they will be dependent upon the server. But एक दो कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो अलग अलग मशीन्स पे पड़ी होंगी, and client can communicate with them directly for those services. They don't need to ask for the permissions from the server to access those services. This type of model is called hybrid model. तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं जी, वो डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी डिसएडवांटेजेस. तो मोस्टली क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस जो होंगी वो स्टिल सेंट्रली लोकेटेड होंगी और मैनेज्ड होंगी, लेकिन यूजर कैन असाइन लोकल एक्सेस टू रिसोर्स इन देयर कंप्यूटर. उसमें हम वर्क ग्रुप्स बना देंगे जिसमें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो सकती है और जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर आपको सर्वर्स के साथ कनेक्ट करना है तो और आपकी कम्युनिकेशन का सिस्टम रहेगा, लेकिन अगर वर्क ग्रुप में किसी और मशीन के साथ कनेक्ट करना है उसका अलग मैकेनिज्म रहेगा. तो यू नीड टू रिमेंबर मल्टीपल पासवर्ड्स, और डुप्लीकेसी हो सकती है बहुत ज्यादा. और अगर एक कोई मशीन है जो एक रिसोर्स है, एक कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, उस पर आपने अच्छे से कंकरेंसी कंट्रोल नहीं लगाया तो उसकी इंटीग्रिटी भी वायलेट हो जाएगी. तो इट मींस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और डेटा लेकिन मिलेगा कुछ और. ये आपने सारा डिस्कस कर लिया हुआ है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. और फाइल सेव्ड ऑन द वर्क स्टेशन मीन्स जो सर्विसेज होंगी आपकी पीयर्स पे अवेलेबल, उनको बैकअप के लिए आपको कोई प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर बैकिंग अप दैट डेटा अवेलेबल ऑन द पीयर्स. So that concludes our today's discussion. अब आप अपने डाउट्स और क्वेश्चन पूछ सकते हो, या किसी कोई टॉपिक आप वापस से डिस्कस करना चाहो तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं उसको. सर हाँ जी आरुषि. सर हाइब्रिड नेटवर्क फिर से समझा दो. हाँ ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं हाइब्रिड नेटवर्क को. ठीक है जी. तो इसके लिए मैं एक खाली स्लाइड चाहिए मुझे, तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ जल्दी से. ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं लास्ट में एक ब्लैंक स्लाइड. वेरी फाइन. तो चलिए अब हाइब्रिड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअली कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या. तो अब जी एक चीज तो फाइनल, एक चीज तो फिक्स है कि सर्वर तो होगा ही इस नेटवर्क में, एंड वी डू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट्स आल्सो. तो मान लीजिए दिस इज आवर सर्वर एंड द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड. सो ये है हमारी एग्जाम्पल टोपोलॉजी. तो इसको मार्क कर देते हैं क्लाइंट 1 2 3 4
5, 6 and 7। तो अब ये मैं मान के चलता हूं कि एक रिसोर्स R1 या कोई सर्विस, इसको सर्विस मान लेते हैं, अब रिसोर्स को हटा देते हैं, वर्ड यूज करते हैं सर्विस। S1, S2, S3, S4, S5 ये अवेलेबल हैं ऑन द सर्वर। एंड if any computer wants to access the service 1 2 3 4 5, it needs to communicate with the server। लेकिन अब क्या किया हमने, अब एक सर्विस थी, लेट्स अज्यूम दैट XS6, इट्स अवेलेबल ऑन द मशीन नंबर क्लाइंट नंबर 1। तो हमने क्या किया, एक वर्क ग्रुप बना दिया इन 5 कंप्यूटर्स का, ठीक है जी। तो इस वर्क ग्रुप में अगर किसी मशीन को, किसी भी क्लाइंट को, किसी मशीन को रिसोर्स सर्विस S6 चाहिए, तो वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो उस सर्विस के लिए कम्युनिकेट करेगा विद C1 या मशीन नंबर 1। तो अब S6 के लिए ये सपोज करो, ये वर्क ग्रुप, इसको 1 मान लेते हैं, वर्क ग्रुप 1। अब इस वर्क ग्रुप के अंदर 5 सर्विसेज हैं जो दैट आर अवेलेबल ऑन द सर्वर, और उसकी इन सारी सर्विसेज की जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रली हो रही है। लेकिन हमारे पास एक सर्विस ऐसी है दैट इज अवेलेबल ऑन अ सिंगल वर्क स्टेशन। तो उस वर्क ग्रुप के अंदर, क्योंकि हमने ये लॉजिकल ग्रुपिंग कर दी ना, वर्क ग्रुप मींस बेसिकली एक लॉजिकल ग्रुपिंग होती है। सपोज कीजिए ये वर्क ग्रुप 1 है, दिस इज वर्क ग्रुप 2, है ना। तो वर्क ग्रुप 1 में ये एक लॉजिकल इनकी इनका लॉजिकल सेटअप हो गया कि ये सभी कंप्यूटर्स एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे कैन शेयर द रिसोर्सेज विद ईच अदर। लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर भी 5 सर्विसेज तो सर्वर पे अवेलेबल हैं। अगर इन मशीन्स को उन सर्विसेज में कुछ भी चाहिए तो वो सर्वर पे जाएंगे। इन सारी सर्विसेज को सर्वर मैनेज करेगा सेंट्रली, उनकी सिक्योरिटी को, उस पे एक्सेस कंट्रोल को वो सारा सर्वर मैनेज करेगा। लेकिन एक सर्विस ऐसी है दैट इज S6, that is not available on the server, it's available on a workstation, that is machine number C1। for that service the machine number 2 3 4 and 5 they will communicate with the machine number 1 directly। तो अब ये देखिए, क्योंकि ज्यादातर सर्विसेज हैं सर्वर पे, लेकिन एक सर्विस है अब एक वर्क स्टेशन पे। तो अब ऐसे सिस्टम को मैं क्लाइंट सर्वर तो बोल नहीं सकता, क्योंकि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि सारी सर्विसेज हैं जो दैट आर बेसिकली मैनेज्ड बाय द सर्वर। बट अब इस केस में क्या हुआ कि मोस्टली सर्विसेज हैं जो वो एक ही मशीन पे हैं, और उस पे स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है, उसके लिए आपने बैकअप के, सिक्योरिटी के मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर रखे हैं, लेकिन सिर्फ एक सर्विस है जो एक दूसरी मशीन पे अवेलेबल है। तो ना तो ये पूरी तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क है, ना ये पूरी तरह से क्लाइंट सर्वर है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हमने किया क्यों, है ना। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जी। पहला तो ये हो सकता है कि ये जो स्पेशलाइज्ड सर्विस है इसका लाइसेंस इस कंप्यूटर के पास हो, बजाय ये कि हम इस पे सर्वर पे उसकी लाइसेंसिंग करें, हमें वो फिजिबल नहीं लगता, तो हमने यहाँ पे रख दिया। या हमारे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, हमारे पास उतना अच्छा हार्डवेयर नहीं है, तो हमने एक मशीन में थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर लगा के एक सर्विस को वहां पे रख दिया ताकि इसका लोड कम हो सके, ठीक है जी। लेकिन अगर इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इट मींस जो सर्विस यहाँ पे है मशीन नंबर 1 पे, उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी रहेगी, और उसको मैनेज करने की, उसकी डेटा कॉपी करने का वो अलग सारा मैकेनिज्म चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेंट्रली ये मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा अब हमारे पास। लेकिन इससे परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और कुछ स्पेशल सिनेरियोज में आपको ये करना पड़ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्लियर हुआ या कुछ और एग्जांपल के साथ डिस्कस करें? हाँ जी आरुषि, इज इट क्लियर? और
सर हाँ जी, सर अगर हम जो वर्क स्टेशन 2 है अगर उसको S6 की जरूरत पड़ेगी फिर वो कैसे लेगा? वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। किससे? नहीं, अगर जो जो दूसरा वर्क स्टेशन है जिसमें 6th और 7th कंप्यूटर है। हाँ नहीं, इसमें हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं एक्सेस कर सकता, अच्छा, ये ठीक नहीं है। एक्सेस कर पाएगा, ओके सर। क्योंकि ये लॉजिकल सेपरेशन होगी ना दोनों की। हाँ जी सर। तो फिर हमें कुछ एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू सर्वर पे सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, दो वर्क ग्रुप्स में कम्युनिकेशन करने के लिए अलग सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर 7 इसके पास जाएगा, सर्वर इसके पास जाएगा। ठीक है जी, फिर कम्युनिकेशन होगी डायरेक्ट, ओके बट इट सर। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा सेटअप। यस सर। ठीक है, इसीलिए हम ग्रुपिंग ही उनकी करती हैं जिनके जिनके बीच में शेयरिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे सपोज कीजिए ना, हमने क्लासेस जब अलग अलग करी तो बीसीए और बीएससी को अलग अलग कर दिया है ना। यस सर। तो बीसीए जो सर्विसेज एक्सेस कर सकती है वो आईटी एक्सेस नहीं कर सकती एट द सेम टाइम। लेकिन कुछ चीजों में क्या हुआ, अब सब्जेक्ट आ गया इनका दोनों का कंप्यूटर नेटवर्क, तो हमने क्या कर दिया, दोनों को मिला के एक वर्क ग्रुप बना दिया। यस। तो इट मींस ये सारी चीजें हम थ्योरेटिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट, आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है प्रैक्टिकली इन स्पेशल सिनेरियोज, है ना। जैसे स्पेशल सिनेरियो क्या हो गए, आपकी सर्विसेज ज्यादा होगी सर्वर पे, उस पर बहुत लोड पड़ रहा है और हमारे पास उतना हार्डवेयर कैपेबल हार्डवेयर नहीं है। तो एक मशीन पे हमारे पास अच्छा हार्डवेयर था, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। यस उससे क्या हो जाएगा, दो फायदे हो जाएंगे, एक तो बर्डन कम हो जाएगा और दूसरा स्पीड फास्ट हो जाएगी नेटवर्क की। क्योंकि अगर किसी मशीन ने S1 2 3 4 करना है वो सीधा यहाँ पे कर रहा है, और अगर दूसरी मशीन ने S6 करना है तो वो यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है डायरेक्टली। तो दोनों रिसोर्सेज सेम टाइम पे एक्सेस हो रहे हैं, दैट विल इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ योर नेटवर्क। यस सर। लेकिन आपको ये चीज भी बहुत ध्यान में रखनी है कि जब हमने क्लाइंट सर्वर डिस्कस करा था ये, तो ये क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है इसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया ना। तो क्लाइंट सर्वर में भी एक ही वेरिएशन नहीं होती कि हमेशा एक ही सर्वर होगा, नहीं, इसमें भी 3 वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशन क्या होती है, सिंगल क्लाइंट सिंगल सर्वर। ठीक है जी, ये पहली वेरिएशन है। और दूसरी वेरिएशन होती है मल्टीपल क्लाइंट्स सिंगल सर्वर। अब जैसी ये वेरिएशन है इन गिवन एग्जांपल, है ना, अब ये डायग्राम। और तीसरी जो वेरिएशन होती है हमारे पास क्लाइंट सर्वर में, दैट इज मल्टीपल क्लाइंट्स एंड मल्टीपल सर्वर। सर्वर्स, लाइक दिस। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। और मुझे चैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। रवि चौधरी जी पूछ रहे हैं जी, एनी एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क की एग्जांपल पूरा द्वाबा कॉलेज है जी, वो आपका हाइब्रिड नेटवर्क लगा हुआ है। उसमें पीयर टू पीयर सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जो हमारे जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, है ना, आप करते हो ना इंटरनेट एक्सेस कॉलेज में। यस सर। तो क्या आपके पास ऐसा कुछ मैकेनिज्म है कि आप द्वाबा कॉलेज की जो अपनी उनकी अकाउंटिंग एप्लीकेशन चल रही है, जो एडमिशन एप्लीकेशन चल रही है, उसको एक्सेस कर पाओ? नहीं, तो उसके लिए हमने अलग सेटअप लगा रखा है, क्योंकि वो अभी प्राइवेट है, बट वो पब्लिक होने जा रहा है बहुत जल्दी। मैं आपको बता दूं कि आपको वो सारी फैसिलिटी ऑनलाइन मिलने ही वाली हैं थोड़ी देर में, और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। सर हाँ जी, सर वो जो आपने लास्ट में बोला था कि कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी के प्रॉब्लम रहती है, तो हम तो सिर्फ सोर्सेज को अलॉट कर रहे हैं यूज करने के लिए, तो चेंजेस कैसे पॉसिबल होंगे जो इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होगी या हाँ और जी, भी हाँ कोई? जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं इसी एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लें वो एग्जाम्पल। यस। अब सपोज कीजिए कि प्रिया की मशीन नंबर 1 पे ना हमारी कुछ फाइल सर्विसेज पड़ी हुई है ना, फाइल है, सपोज करो वो की एक्सेल शीट है, ठीक हो गया। यस। तो मैंने
अब क्या किया, इस रिसोर्स को मैंने मार्क कर दिया एज R1, है ना। तो मैंने इसको शेयर कर लिया 2 के साथ भी, है ना, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। तो इट मींस ये इस फाइल को तीनों मशीन्स एडिट कर सकती हैं, यस। कर सकती हैं। तो अगर ये सारी मशीन्स इसको एडिट कर सकती हैं, सपोज करो टाइम T1 पे कंप्यूटर 2 आया, उसने पहले सेल की वैल्यू को A कर दिया, सेम टाइम पे मशीन नंबर 2 और 3 और 4 भी आए, उन्होंने उसी सेल में B और C कर दिया, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट कमिट करेगा, है ना, यस। यही हुआ ना। लेकिन मशीन नंबर 2 इसकी वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, A, 3 एक्सपेक्ट कर रही थी B, और 4th एक्सपेक्ट कर रही थी C, क्योंकि C ने सबसे लास्ट में चेंजेस किए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सी। लेकिन मशीन नंबर 2 और 3 क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ए और बी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, अलग से चलाना पड़ेगा ताकि वो एडिट वगैरह। नहीं, क्या मैकेनिज्म है डेटाबेस में, एक मैकेनिज्म है जो इस चीज को कंट्रोल करता है, व्हेन मल्टीपल प्रोसेस कैन शेयर द सेम रिसोर्स। अब ये वही सिनेरियो हो गया कि रिसोर्स इज सेम बट द मल्टीपल प्रोसेस कैन शेयर दैट सेम रिसोर्स। तो उसकी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल। पढ़ा था कि नहीं डेटाबेस में लास्ट सेमेस्टर, हाँ जी सर, पढ़ा था। हाँ वही कंकरेंसी। फिर इसीलिए ये यहाँ पे ऐसी पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशल अटेंशन चाहिए। अब यही अटेंशन आपको सपोज करो कोई और सर्विस है, उसके लिए मशीन नंबर 2 पे भी चाहिए, वही अटेंशन 3 पे भी चाहिए, 4 पे भी चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, आपको सारी अटेंशन एक ही मशीन पे रखनी है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, किस पे, सर्वर पे। यहीं पे सिक्योरिटी लगानी है, यहीं पे कंकरेंसी कंट्रोल लगाना है अगर जरूरत पड़े तो एक ही मशीन को मैनेज करना है। तो अब ये तो हमने कंकरेंसी की बात करी, सिक्योरिटी का भी कितना बड़ा रिस्क है यहाँ पे, यस। है ना। तो आपको अलग अलग सभी सिस्टम पे अलग अलग सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, लेकिन इन क्लाइंट सर्वर यू नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज मैकेनिज्म ऑन अ सिंगल मशीन, सर दैट इज सर्वर। हाँ जी, सर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में अगर एक ही टाइम पे एक से ज्यादा क्लाइंट ने कम्युनिकेट करना है तो सर्वर मतलब साइमल्टेनियसली उनको ग्रांट करेगा या एक एक करके? अच्छा उसके लिए क्या होता है, चलिए अच्छी बात है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जी, ये जो सर्वर है, इस एग्जांपल को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि ये जो सर्वर है दैट इज वेब सर्वर। ठीक हो गया जी, क्लियर है। और ये सारी मशीनें उस वेबसाइट को एक्सेस करना है एट सेम टाइम, चलिए ये तो मार्क किया हुआ, टाइम T1 पे इसने भी उस सर्विस को एक्सेस करना है, 2 ने भी रिक्वेस्ट कर दिया, 3 ने भी कर दिया, 4 ने भी कर दिया और 5 ने भी कर दिया। यही क्वेश्चन है ना सुष्मित? यस सर। तो ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा। तो अब ये कैसे होगा, तो सुष्मित क्या होता है कि जो सर्वर पे एक्चुअली ना रिक्वेस्ट के लिए ना रिक्वेस्ट हैंडलिंग कौन करेगा या प्रोसेस कौन करेगा, वो सीपीयू ही करेगा ना उसको। तो सीपीयू क्या करता है, वो अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट कर लेता है, सर्विस थ्रेड्स। ठीक हो गया, क्लियर है। तो वो कितने थ्रेड्स कैलकुलेट करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द सीपीयू। सीपीयू की जितना क्लॉक स्पीड ज्यादा होगा, जितनी उसकी कोर्स ज्यादा होंगी, वो उतने ज्यादा थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है। ठीक हो गया, क्लियर होगी ये चीज। तो इट मीन जब इसका रिक्वेस्ट आएगा, इस थ्रेड को एलोकेट हो जाएगा, इसका इस थ्रेड को हो जाएगा, इसका इसको हो जाएगा, इसका इसको हो जाएगा और इसका इसको हो जाएगा। तो सारी उसने रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया सुष्मित? यस सर पर सीपीयू तो एट अभी अ टाइम कंप्लीट एक ही। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रिया, पहले कंप्लीट होने दीजिए फिर क्वेश्चन नेक्स्ट। तो मान लीजिए अब एक और मशीन आ गई, इसने भी उसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब उसको हैंडल करने के लिए सीपीयू के पास थ्रेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको पाइपलाइन में डाल देगा।
जैसे ही कोई फ्री होगा वो उसको एलोकेट कर देगा। ऐसा ही होता है। हर सर्वर की एक कैपेसिटी होती है, वो साइमल्टेनियस कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है उतनी रिक्वेस्ट को वो इंटरटेन करता है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट उससे ज्यादा हो जाए फिर वो कहाँ पे डाल देता है, एक क्यू में डाल देता है, पाइपलाइन में डाल देता है। तो जैसे जैसे उसकी रिसोर्सेज फ्री होते जाते हैं वो उनको इंटरटेन करता जाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। आगे इसके रिलेटेड सिक्योरिटी कॉन्सर्न भी आएंगे, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स कैसे होते हैं ना। तो अगर आप चाहते हो कि कोई लेजिटिमेट यूजर है जो लीगल यूजर है, इट शुड नॉट बी अवेलेबल टू एक्सेस द सर्विसेज, वो अटैक हम कैसे करें, ये आगे के कंसर्न्स हैं। अब लेकिन इतना आप याद रखो कि हर मशीन की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एट द गिवन टाइम। और रिक्वेस्ट अगर उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो द मशीन यूज टू पुट दोज रिक्वेस्ट इनटू द क्यू और द पाइपलाइन। हाँ जी प्रिया। सर मैं कह रही थी कि सीपीयू तो एट ए टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, तो साइमल्टेनियसली बाकियों को कैसे हैंडल करता है? नहीं प्रिया, ऐसा नहीं होता। पहली तो बात है, अगर आपका सीपीयू मल्टी कोर है ना, हाँ जी। तो हर कोर पे अलग प्रोसेस चलेगा, लेकिन उस प्रोसेस के भी हम फर्दर थ्रेड्स बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो हाँ इस जी। तरह से हम एक ही सीपीयू में मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली ये भी होता है कि सर्वर जो होता है ना, वहां पे सर्वर में आपका मदरबोर्ड इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें 16 प्रोसेसर लगे हों। तो अगर 16 के 16 क्वाड कोर प्रोसेसर हैं, हर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं, हर प्रोसेसर में 8-8 4-4 कोर्स लगी हुई हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर लेगा वो ना। और फर्दर उसमें थ्रेड्स क्रिएट कर लेगा यस। शेयर्ड मेमोरी और शेयर्ड सीपीयू में। ठीक हो गया। यस। आपने, मुझे पता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सुना होगा ना, यस। एक कोर एक प्रोसेस, लेकिन एक कोर एक प्रोसेस है, थ्रेड्स तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। जी। हाँ जी, दिस इज द पॉइंट। और हाँ, तो फिर और अगर ये सारे सेम रिसोर्स को भी एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए, तो अगर वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है इन सभी ने, वो तो सेम टाइम पे हो ही सकता है ना। यस। बस राइट ऑपरेशन के लिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा वो। हाँ जी, बिल्कुल। और भी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ आज का सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। एंड यू I'll upload this lecture also on, and you will get the link by evening, तो आप वापस भी गो थ्रू कर सकते हो एक बार। और फिर भी अगर आपके डाउट्स हो तो हम उसको कर लेंगे, आपके सभी डाउट्स को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।